हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल में यूज़ किए जाने वाले सम फंक्शन के अलग अलग वर्जन्स की। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में सम फंक्शन का एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश में और सेकेंड पार्ट में इसका एक्सप्लेनेशन है हिंदी में। सो जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को हिंदी में देखना चाहते हैं वो इस वीडियो को डायरेक्टली सेकेंड पार्ट से देखना शुरू करें। So guys, in today's video we are going to talk about three basic versions of sum function in Excel. The first one is the standard sum function. This sum function is used to obtain the total of values in a range. The second one is the SUMIF function. This function returns the total of values in a range based on one single condition. The third function is the SUMIFS function, which also returns the total of values in a range but based on multiple conditions. To understand how each of these functions works, let's go to our data tab and solve a problem using each of these functions. So guys, here in our data set we have the sales data for 2 years 2020 and 2021. We would like to know three things from this data set. We would like to compute the total sales amount for 2 years. We would like to know the yearly sales amount for each individual year 2020 and 2021. And we would also like to know the quarterly sales amount for each year 2020 and 2021. To compute the total sales, we will use the sum function. So let's call the sum function is equal to sum. Now guys, the sum function has one single input requirement, which is the range of values which we want to add up. And here in our case we want the total of sales, so it's going to be the sales column. So let's just add this input. You will close the parenthesis and hit enter. So now we have arrived at the total sales amount for 2 years. To compute the yearly sales for 2020 and 2021, we are going to use the SUMIF function. The SUMIF function allows us to calculate the sum against a single evaluation criteria, and here in our case we have a single evaluation criteria which is the year. So let's call the SUMIF function SUMIF. Now guys, the SUMIF function has three input requirements. First one is the data range, which in our case is going to be the entire data range from year to sales column. The second input requirement is the criteria of evaluation, so it is going to be the year. And the third input requirement is the sum range, which is going to be the sales column of our data set. Let's just add this input and calculate the yearly sales for 2020 and 2021. Let's add the data range. We will freeze the rows and columns. Criteria is going to be year, and sum range is going to be the sales column. We will again freeze the rows and columns, close the parenthesis and hit enter. Now we have got the yearly sales total for year 2020. We will drag this formula down to get the total for 2021. Now using the SUMIF function, we have got the yearly sales for year 2020 and 2021. To compute the quarterly sales for each year, we are going to use the SUMIFS function. So let's call the SUMIFS function is equal to SUMIFS. Now guys, the SUMIFS function has three basic input requirements. The first one is the sum range. The second one is the criteria range. And the third one is the criteria. The SUMIFS function, as defined earlier, returns the sum of values evaluated against multiple criteria. Here in our case, we have two criteria. We would want to know the quarterly sales for each year. So our two criteria are the quarter and the year. So let's just add these inputs in a formula and compute the quarterly sales for year 2020 and 2021.
So our sum range is going to be the sales column. We will freeze the rows and columns. Our first criteria range is going to be the year. Again, we will freeze the rows and columns. Our criteria is going to be year. Our second criteria range is going to be the quarter. So we will add that. We will freeze the rows and columns. And our criteria is going to be the quarter. Now we will close the parenthesis and hit enter to get the quarterly sales. So now guys, we have arrived at the sales for Q1 of 2020. We will drag this formula down to get all the values. So guys, now we have satisfied all our requirements using the different versions of sum function in Excel. I hope you guys have liked this video. For more such videos, please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you. तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक्सेल में यूज़ किए जाने वाले सम फंक्शन के अलग अलग वर्जन्स के बारे में। सबसे पहला वर्जन है बेसिक सम फंक्शन। ये फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी रेंज का टोटल चाहिए होता है। दूसरा है सम इफ फंक्शन। इस फंक्शन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी एक क्राइटेरिया के बेसिस पर टोटल वैल्यू की ज़रूरत होती है। और तीसरा है सम इफ फंक्शन। ये फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दो या दो से ज़्यादा क्राइटेरिया के बेसिस पर सम की ज़रूरत होती है। इन फंक्शंस के बारे में और अच्छी तरीके से जानने के लिए हम चलते हैं हमारे डेटा टैब पर और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इन फंक्शंस का यूज़ करते हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे डेटा टैब में हमारे पास 2 साल का सेल्स डेटा है और इस डेटा का यूज़ करते हुए हमें 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमें हर साल का सेल्स फाइंड आउट करना है और सबसे आखिर में हमें क्वार्टरली सेल्स फाइंड आउट करना है 2020 और 21 के हर क्वार्टर के लिए। तो दोस्तों, टोटल सेल्स फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे सम फंक्शन का। सो सम फंक्शन को कॉल करते हैं इज इक्वल टू सम। अब यहाँ पर दोस्तों सम फंक्शन में एक सिंगल इनपुट रिक्वायरमेंट होती है जो कि होती है रेंज उन वैल्यूज़ की जिनका हम टोटल चाहते हैं और हमारे केस में ये रेंज है सेल्स कॉलम। तो हम इस इनपुट रिक्वायरमेंट को ऐड करते हैं, ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास टोटल सेल्स आ चुका है। अभी हमें हर साल की सेल्स अमाउंट फाइंड आउट करनी है और ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सम इफ फंक्शन को कॉल करते हैं इज इक्वल टू सम इफ। अब दोस्तों, सम इफ फंक्शन में 3 बेसिक इनपुट रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहली होती है डेटा रेंज, जो कि हमारे केस में होने वाली है पूरी डेटा रेंज ईयर कॉलम से लेकर सेल्स कॉलम तक। सेकेंड इनपुट रिक्वायरमेंट होती है क्राइटेरिया की, जो कि हमारे केस में होने वाला है ईयर। और तीसरी रिक्वायरमेंट होती है सम रेंज की, जो कि हमारे केस में होने वाला है सेल्स कॉलम। तो दोस्तों, इन 3 इनपुट रिक्वायरमेंट्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले हमारा डेटा रेंज होगा ईयर कॉलम से लेके सेल्स कॉलम तक। हम रोज और कॉलम्स को फ्रीज कर देंगे। सेकेंड इनपुट रिक्वायरमेंट होगा क्राइटेरिया, जो कि है ईयर। और थर्ड इनपुट रिक्वायरमेंट है सम रेंज, जो कि है सेल्स कॉलम। हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर हिट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास सेल्स आ चुका है 2020 के लिए और अभी 2021 के लिए हम इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास दोनों सालों के लिए सेल्स अमाउंट आ चुकी है यहाँ पर। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें क्वार्टरली सेल्स कैलकुलेट करना है। तो हमें हर साल के हर क्वार्टर के लिए सेल्स वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट करना है और ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे।
तो कॉल करते हैं सम एफ एस फंक्शन को इज इक्वल टू सम एफ एस। अब दोस्तों सम एफ एस फंक्शन में तीन बेसिक इनपुट रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहली है सम रेंज, जो कि हमारे केस में होने वाली है सेल्स कॉलम। दूसरी है क्राइटेरिया रेंज, हमारे केस में दो क्राइटेरिया रेंजेस होंगी। सबसे पहली होगी ईयर, और दूसरी रेंज होगी क्वार्टर की। तीसरा इनपुट रिक्वायरमेंट है दोस्तों क्राइटेरिया। हमारे पास दो क्राइटेरियाज है, सबसे पहला है ईयर और दूसरा है क्वार्टर। तो इन इनपुट्स को ऐड करते हैं। सम रेंज होगी सेल्स कॉलम, हम रोज और कॉलम्स को फ्रीज कर देंगे। हमारी पहली क्राइटेरिया रेंज होगी ईयर, यहाँ पर भी हम रोज और कॉलम्स को फ्रीज कर देंगे। हमारा पहला क्राइटेरिया होगा ईयर, दूसरी क्राइटेरिया रेंज होगी क्वार्टर, रोज और कॉलम्स को फ्रीज कर देंगे। दूसरा क्राइटेरिया होगा क्वार्टर, ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2020 के पहले क्वार्टर के लिए सेल्स वैल्यू आ चुकी है। बाकी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर लेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर हमने हमारा चैलेंज जो है वो सॉल्व कर दिया है। हमारे पास टोटल सेल्स आ चुका है, सम फंक्शन का यूज़ करके हमने ये इस वैल्यू को कैलकुलेट किया है। हमारे पास हर साल के लिए सेल्स अमाउंट आ चुकी है, जो हमने सम इफ फंक्शन यूज़ करके कैलकुलेट की है। और हमारे पास क्वार्टरली सेल्स भी आ चुका है, जो हमने सम इफ एस फंक्शन यूज़ करके कैलकुलेट किया है। सो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी एक्सेल में सम फंक्शन के अलग अलग वर्जन्स के बारे में। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।